Bamboo biscuits. Is bamboo made flask. Is it bamboo made? These also bamboo We are coming to the Naga Hills, beautiful Naga Hills that presenting in the traditional more there. These are our Assamia chocolates. Missing. Good morning to one and all present here. I request. Today we have the Northeast Festival 2020. It's a very charming, very beautiful festival, and under the initiative of Samkanu Mahanta and his team, who have been organizing for so many years to focus Northeast in the national platform and also to draw the attention of the national and international tourists to the beautiful region of Northeast. Its potentialities, possibilities and prosperities are being well projected through their banner and literature and also video clipping. I believe this is how Northeast will have to grow under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And today, I am very much happy to address this particular August gathering. And in this program, we are virtually connected by Honorable Chief Minister of Manipur, Mr. Biren Singh ji, Honorable Minister Donor, Sri Jitendra Singh ji, and our most respected and dynamic Chief Minister from Tripura, Biplab Kumar Dev ji, and my two colleagues in the Council of Ministers, Government of Assam, Sandavan Patwari and Atul Bora, and Mr. Singla, the Foreign Secretary, Government of India, Chief Secretary, Government of Assam, Jishnu Barua,
and Honorable Minister for Sikkim, Mr. Pantiji, and the Managing Director, Numaligarh Refinery Limited, Mr. S.K. Barua, and the CEO of SpiceJet, Deboju Maharshi, DGP Assam, Bhaskar Jyoti Mahanta, and the Chairman cum Managing Director, News Life, Riniki Bhuya, and also other dignitaries present here today. Look, we are all North-Sterner. We are to live together, walk together, smile together, and share our happiness and tragedies together. And I am very happy today to glorify the stand taken by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in the last 6 years of his regime. And the day he has taken over the responsibility of Prime Ministership to serve the nation. And the moment he has uttered that I will serve the nation not as a Prime Minister but as a Pradhan Sevak, this is the line of his level of dedication, devotion, commitment, sincerity and honesty to the greatest democracy of the world, that is India. Bharat. Bharat Mata Ki Jai. This is how we always pay our respect to our mom, Bharat Mata. So, North is the integral part of India. Northeast now have certain goal being set by Honorable Prime Minister. The goal to play the role of a new engine for India's growth. It's a bigger responsibility bestowed on the soldier of the North-Sterner, considering the available resources in the region. Because before becoming the Chief Minister of Gujarat, Modi ji has traveled a lot in the entire region. And out of his visit to the different part of the region, he has discovered the amalgamation of the different people and culture and hot sheet of biodiversity of the entire region, natural resources. All the resources he has discovered during his stay in Northeast. So I believe this is the practical experience, whatever he has gathered during his stay in this beautiful region. Now, after becoming Prime Minister, he set his goal very clearly. और हमारे नॉर्थ ईस्ट में बसे हुए प्रकृतियों का संपदा, संभावना और शक्ति को देखते हुए उन्होंने संसद में यह ऐलान किया, नॉर्थ ईस्ट को देश की जैविक केंद्र बिंदु के हिसाब से खड़ा करना होगा, प्रस्तुत करना होगा. To create the organic hub of the nation. So what's the lovely agenda? Because organic means what? You are paying respect to ecology, restoration of ecology. Ecology means strength, and ecology means energy. Ecology means oxygen. Ecology means healthy life and wealthy life. So this is how Modi ji has inspired all the North-Sterner. So then, one day he has narrated the entire Northeast as the Ashtalasmi. पहले हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम इतना शक्तिशाली स्थान पर बसे हुए हैं. नॉर्थ ईस्ट में, मेरा जन्म नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, असम की धरती पर है, विप्लव के जैसे त्रिपुरा में हुआ. आप सबको हमारा यही मौका मिला है कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों का जन्म हुआ है. लेकिन हम लोगों ने कभी भी यही अध्ययन नहीं किया, नॉर्थ ईस्ट को आविष्कार करने के सिलसिले में हमने कोशिश नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, कष्ट नहीं उठाया. शायद इसके लिए हमने अपना धरती में बसे हुए शक्ति को देख नहीं पाया. लेकिन मोदी जी ने देख लिया.
और उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट कोई मामूली इलाका नहीं है, देश का अस्तल अस्मी है। तो इतना तक हमें गुणगान किया, इतना बड़ा पहचान दिया मोदी जी ने। अब हमारा क्या दायित्व है? अब दायित्व ही बनता है कि मोदी जी ने एक हमें फॉरेन पॉलिसी हाथ में दिया, और ये एक ऐसा सीढ़ी है जिसके जरिए हम नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया का प्रमुख स्थान, प्रमुख इलाका के हिसाब से हम अलग अलग सेक्टर में खड़ा कर सकते हैं, अपने शक्ति को हम दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सही उपयोग होना चाहिए, इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। हमें हर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट को एक साथ मिलकर मोदी जी ने जो एजेंडा हमें दिया है, जो लक्ष्य दिया है, उसी हिसाब से आसियान 10 राष्ट्रों का साथ और BBN बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, हमारे कुल मिलाकर आसपास में हम लोगों ने देखा 800 मिलियन पॉपुलेशन है। इतना बड़ा आबादी, ये आबादी हमारे लिए लुक्रेटिव मार्केट है। इस मार्केट को हमको कब्जा करना चाहिए। शिक्षा में हो, बिजनेस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, स्वास्थ्य में हो, हर अलग अलग स्पोर्ट्स में हो, कल्चर में हो, एग्रीकल्चर में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, प्रोसेसिंग यूनिट में हो, वैल्यू एडिशन की सिलसिले में हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, इंक्यूबेशन हो, इन हर चीज पर हमें अपना काबिलियत दिखाना चाहिए और अपने आप को उसी हिसाब से प्रस्तुत करके सारा साउथ ईस्ट एशिया में अपना पहचान को इतना मजबूत से बनाना चाहिए ताकि मोदी जी का जो एजेंडा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी हिसाब से हम देश को आगे बढ़ाने का काम करें। ये जो एजेंडा है, श्यामकानू महंत जी कहाँ गए? आपको अगले दिनों में और भी कार्यक्रम करना होगा। सिर्फ ऐसे ही नहीं, जैसे विप्लव जी ने कहा, मैं तो यही चाहूंगा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हो जाए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ब्रुनोई, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया और बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, हमारे आसपास बसे हुए कुल मिलाकर 13 नेशन है और उनके साथ हमारे युवा के बीच में चर्चा होना चाहिए, स्टूडेंट के बीच में चर्चा होना चाहिए, आर्टिस्ट का बीच में चर्चा होना चाहिए। तब जाके हमें अपना पहचान हम खुद बना पाए और मोदी जी ने जैसे कहा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए आप अपना रिश्ता बढ़ाइए, मजबूत कीजिए। अलग अलग सेक्टर पर आप रिश्ता बना सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो इतना बड़ा हमें मौका दिया मोदी जी ने, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी हम मेहनत करें। विदाउट हार्ड वर्क नथिंग कैन बी डन, नथिंग इज पॉसिबल टू हैपन इन लाइफ। इसलिए मोदी जी का ही आग्रह है, इस उसूल को मोदी जी हमेशा सिर्फ प्रोपागेट नहीं, प्रैक्टिस में इस उसूल को वो पालन करती है। इसका मतलब है कठोर परिश्रम के बिना परिवर्तन संभव नहीं है। अगर अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो कठोर परिश्रम करना ही होगा। तो नॉर्थ ईस्ट को जाग उठना चाहिए, एक साथ मिलकर मेहनत करना चाहिए, अपने जमीन में बसे हुए जो शक्ति है, इस शक्ति को उजागर करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के जरिए, नई नई हमारे जो आइडिया के जरिए हम इसका उत्पादन बढ़ाए, ताकि मोदी जी ने जो लक्ष्य हमें दिया है अगले 2022 तक हर किसानों का उपार्जन 2 गुना होना चाहिए। तो इसलिए इतना बड़ा अनुभव मोदी जी ने हमें दिया है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। आज किसानों के पास बहुत शक्ति बसा हुआ है। देखिए, पहले हम लोग का ये अनुभव थे नहीं। सॉइल हेल्थ कार्ड, अपनी जमीन का शक्ति कितना है, कितना नाइट्रोजन है, कितना कार्बन है, इन बातों पर हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया।
मोदी जी आकर हमें कहा, भाई अपनी जमीन पे क्या शक्ति है, अगर जो जो कमजोरी है उसको कैसे पूरा किया जाता है, इस पर तुम अध्ययन करो। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के सिलसिले में हमें उजागर किया, अनुभव जगाया, और साथ साथ में वाटर हेल्थ कार्ड, जो पानी आप खेत में देते हैं वो एसिडिक वाटर है क्या, नुकसान पहुंचाने वाला पानी है क्या, इनको भी देखना चाहिए। और तब जाके हमारा पास जो लक्ष्य है इसका उत्पादन दोगुना होना चाहिए। उत्पादन अगर दोगुना हो गया, अगर उत्पादन को कैसे क्वालिटी प्रोडक्शन करें, इन विषय पे भी मोदी जी ने हमें अनुभव दिया। और उन्होंने कहा हमारी जितना हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहां साइंस है, जहां लेबोरेटरी है, इस लेबोरेटरी में हम इस मिट्टी का जो नमूना है, सैंपल को हम टेस्ट कर सकते हैं, पानी का भी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ही सही, लेबोरेटरी है ही सही, इसके लिए अलग सा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई जरूरत नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीजों के लिए हमें मतलब शक्ति चाहिए था, दिशा चाहिए था, इन सारी चीजों का मोदी जी ने जैसे हमको शक्ति दिया, उजागर किया, अनुभव जगाया, तो मुझे लगता है कि अगले दिनों के लिए हमारा जो नई पीढ़ी है, जो पढ़ी लिखी है, वो पढ़ी लिखी जो नई पीढ़ी है वो भी अपने खेत पर मेहनत करके सही प्रयुक्ति इस्तेमाल करके उत्पादन बढ़ा के उपार्जन बढ़ा सकते हैं, ताकि उनको भी अच्छा कमाई हो जाए। क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने जो परंपरा प्रतिष्ठा किया है अपने जमीन पर, आजकल की नई पीढ़ी कभी कभी किसी शताब्दी में खेत पर जाने के लिए इतना रुचि नहीं दिखाते। तो जब उनको पता चल गया कि खेत में भी काफी पैसा है ना, तो मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे मैंने असम के अंदर देखा, बहुत सा ऐसा पढ़े लिखे हाईली मतलब क्वालिफाइड यूथ हैव आल्सो कम फॉरवर्ड टू टेक अप दिस एज ए प्रोफेशन विथ सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही हमें नई पीढ़ियों को जगाना होगा, क्योंकि मैं वियतनाम गए थे 2 साल पहले, हमारे कृषि मंत्री भी साथ में थे और विधायक भी थे, तो साथ में मैं ले गया था 14 नंबर्स ऑफ हमारी किसान, 4 महिला भी थे इसके अंदर। किसानों को इसलिए ले गया था ताकि वियतनाम ने जो तरक्की किया है कम दिनों के अंदर, आपको मालूम है 30 साल पहले वियतनाम का हालत क्या था, जब हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न हमारे आदर्श नेता अटल भाई वाजपेयी जी जब गए थे वहां, उन्होंने वियतनाम ने जो पर्यावरण, उसका जो क्लाइमेट देखा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो आपकी बहुत स्कोप है, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत तरक्की कर सकते हैं। वो कैसे? तब जाके वहां से कई युवा को दिल्ली लाया गया है, दिल्ली पूसा इंस्टीट्यूट में उसको एजुकेशन दिया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्वालिफाइड करके उनको भेज दिया अपने देश पर। उन्होंने जाके किसानों का साथ रिश्ता जोड़ा, फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, दे हैव डेवलप्ड ए गुड केमिस्ट्री of working, team. So now, out of their sensible effort, now Vietnam become one of the leading nation of export in the agriculture sector. By exporting only 7 items out of the agriculture product, they earn $36 billion. इतना बड़ा, इतना छोटा देश है, उसका कुल मिला के आबादी है 7 to 8 करोड़। Now they earn a lucrative amount every year out of their agriculture product because they get better rate, as because they get better price, as because they add value to that product. So value addition के सिलसिले में उन्होंने जो सफलता प्राप्त किया है, इसके वजह से आज उनकी जो भी उत्पादित सामग्री यूरोपियन मार्केट में अच्छा उनको
पैसा मिलता है, अच्छा उनको मतलब जगह मिलता है। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट को भी ऐसे ही प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट एंड मार्केटिंग विद द सेम ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड processing unit for value addition. To then we could capture the global market. So with this perspective, I believe we should grow, we should develop ourselves. मैं आज इस सभा पर बहुत समय तक हमारे अलग अलग वक्ताओं के भाषण सुन रहे थे, तो बहुत कुछ आज सीखने मिला। तो मुझे लगता है कि आई एम रियली थैंकफुल टू एवरी speakers today who has spoken in this August gathering, and really you have been kind enough to give patient hearing. इतना लंबे समय तक किसी का पास समय नहीं है भाषण सुनने का, ये जमाना ही ऐसा नहीं है, लंबे भाषण सुनने का किसी का पास समय नहीं। तो मैंने यही देख रहा था, आपका सहन शक्ति ये मानना होगा। आई सैल्यूट यू। I really honored that you are here, and Samkanu Mahanta, so you continue it, और आप अपने टीम को और भी मजबूत कीजिए। हाँ, जैसे विप्लव जी ने कहा, अलग अलग सेक्टर पर होना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में अब तक हम लोगों ने जो सफलता प्राप्त किया है, इस सफलता का नमूना को पेश करना चाहिए। वो आप कैसे पेश करेंगे, ये स्ट्रेटेजी आपका ही है। लेकिन हर ऐसा फेस्टिवल हो, अलग अलग मतलब ये हो, इवेंट हो, त्रिपुरा में किस किस विषय पर सफलता प्राप्त किया, क्योंकि आपने कम समय पर त्रिपुरा के जैसे नेशनल मेन स्ट्रीम में लाया, प्रगति के सिलसिले पर। इन चीजों को नई पीढ़ी जाने, विद्यार्थी जाने, उनके बीच चर्चा हो जाए। लेट दिस बिकम, दिस सक्सेस स्टोरी बिकम a matter of discussion among the student community, among the youth, क्योंकि ये यूथ लेड डेवलपमेंट के सिलसिले में देश को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि मोदी जी का ही मानना है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा युवा शक्ति पर ज्यादा ही भरोसा करते हैं। इसलिए युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नई नई स्कीम लॉन्च नहीं किया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, Digital India, startup, stand-up, everything, mainly targeting to inspire the energy in the youth. अगर युवा जाग उठे, क्योंकि दुनिया में जितना भी देश है, अगर सबसे ज्यादा युवा किसी देश का साथ है, पास है, वो भारत में है। इसलिए भारत को हमेशा यंगेस्ट नेशन के हिसाब से स्वीकृति मिलता है। उसी युवाओं को, देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए अगले दिनों में जगाना होगा। तो इसलिए आप भी युवा शक्ति को जगाइए। इसी शब्दों का साथ मैं पुनर्बार आज ये सभात उपस्थित थका प्रत्येकगराकी परम श्रद्धार व्यक्ति गभीर श्रद्धा और कृतज्ञता जनाइछु, and also pay my respect to all the speakers and Honorable Chief Minister from Tripura, and also the virtually participating our Honorable guest from Delhi, Honorable Minister Jitendra Singh, Chief Minister Manipur, Mr. Biren Singh ji, and also the Foreign Secretary, Government of India, Singla ji, and also all the dignitaries present here. I am really delighted to take part in this August gathering, and I wish all the success of this event. Thank you. Thank you. Jai